students. Today our topic is plant water relations. We know that water is essential for all physiological activities of plant and it plays a very important role in all living organisms. We cannot think life without water. So water is essential for plants as well as for other living beings. It plays vital role in physiological activities of living organisms. Water provides a medium in which most substances are dissolved due to its polar nature. It dissolves a variety of substances in it, so it is called a universal solvent. It has the capability of dissolving a large number of substances in it. We know that the protoplasm means cytoplasm plus nucleus, that is living portion of cell. It is made up of water, in which different molecules are dissolved and several particles are suspended in it. So protoplasm is actually water. Protoplasm is actually water, that is cytoplasm and nucleus, and different substances are dissolved in it. We also know that, for example, we will take a watermelon. A watermelon has 92% of water in it, and a herbaceous plant has 90 to 85% water. 90 to 85%. That means 85 to 90% of the weight of plant is water. In the same way, 92%, if a watermelon weighs 100 kg, 92 kg will be water in it. So, water is required by plants as well as by animals for maintaining the turgidity of cells. It maintains the turgidity of cells. It maintains the functionality of protoplasm, and it also helps in regulating the body temperature constant. It helps us to maintain constant body temperature. The distribution of water within a plant varies. For example, woody pots have very little water, whereas the soft pots in a plant have enough water. A seed also contains water, although it appears dry to us, but it has water. If there is no water in the seed, the embryo would not survive. It will not be then alive and it will not respire. Mm. We also know that those plants in terrestrial habitats take huge amounts of water daily, but most of this water is lost to air through evaporation from leaves. That is, they lose water through transpiration. Mm. A mature corn plant, for example, absorbs almost 3 liters of water in a day, whereas a mustard plant absorbs water equivalent to its weight in 5 hours. So, there is high demand of water for plants. Uh, Therefore, water is often the limiting factor for plant growth and plant productivity. Water is a limiting factor for plant growth and plant productivity in both the environments, agriculture, whether it is agriculture environment or it is natural environment. Water becomes a limiting factor because its role is uh, very essential in living organisms. So, in order to understand the importance of plant water relations, it is essential for us to study the components, the terms that are related with the plant water relations. For example, the main thing that is in plant water relation, that is water potential.
Then what is water potential? It is the difference between free energy of water molecules in pure water and the energy of water in any other system. For example, water in a solution or water present in a plant cell or tissue. This is termed as water potential. The difference, we know that water which is pure, which does not contain any dissolved substances in it, has high free energy of in its water molecules. That means pure water has high free energy. When we dissolve some substance in water, the energy, the free energy of water, pure water then decreases. Then free energy of pure water decreases. Uh, or in other words, we can say that this mm, kinetic energy of water molecules decreases when we dissolve any substance in it. This difference between the free energy of water molecules in pure water and energy of water in any other solution, this is called water पोटेंशियल. यही वाटर पोटेंशियल होता है जो फ्री एनर्जी डिफरेंस होती है प्योर वाटर में और सोल्यूशन के बीच में, इसको हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल. वाटर पोटेंशियल को हम एक ग्रीक लेटर साई के ज़रिए डिनोट करते हैं और ये इसको हम प्रेशर यूनिट्स में, दोज यूनिट्स विच आर मीन्ड फॉर प्रेशर, फॉर एग्जांपल पास्कल है प्रेशर का यूनिट, बार है या एटमॉस्फेयर है, उसी के ज़रिए से इस वाटर पोटेंशियल को हम एक्सप्रेस करते हैं. जो वाटर पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज़ नॉट अंडर एनी प्रेशर, वो ज़ीरो होता है. इसलिए आप याद रखेंगे वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का ज़ीरो होता है. प्योर वाटर हैज़ वाटर पोटेंशियल ऑफ ज़ीरो पास्कल्स. अब इसमें दो चीज़ें हैं. वाटर पोटेंशियल इज डिटरमाइंड बाय टू फैक्टर्स, दैट इज सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल. दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं इस वाटर पोटेंशियल के. दीज आर द टू मेन कंपोनेंट्स, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल, विच डिटरमाइन द water potential. So we can say that water potential, जो वाटर पोटेंशियल होता है वो बराबर होता है सॉल्यूट पोटेंशियल दिस वन प्लस प्रेशर पोटेंशियल दिस वन. अब सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है? वो द अमाउंट बाय विच द वाटर पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट. वो अमाउंट जिसके ज़रिए से वाटर पोटेंशियल कम होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट. जो कोई भी सॉल्यूट मौजूद होगा जिससे वाटर पोटेंशियल कम होगा उससे सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मेटिक पोटेंशियल भी कहते हैं. दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मेटिक पोटेंशियल. इट इज़ ऑलवेज इन नेगेटिव वैल्यूज़, ये होता है नेगेटिव वैल्यूज़ में. सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज इन नेगेटिव वैल्यूज़. प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है? प्लांट सेल जो है वो इलास्टिक है, वो एक्सर्ट करती है प्रेशर सेल्यूलर कंटेंट्स पे. Plant cell is elastic and it exerts a pressure on the cellular contents. Cellular contents पे ये pressure exert करता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो इनवर्ड वॉल प्रेशर होता है, इनवर्ड वॉल प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप होता है. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप होता है वैक्यूल में जिसको हम टर्गर प्रेशर भी कहते हैं. प्रेशर पोटेंशियल यूजुअली पॉजिटिव होता है और ये प्लांट सेल में ऑपरेट करता है वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर की सूरत में. इट ऑपरेट्स इन प्लांट सेल्स एज वॉल प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर. इसको कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल. वो पॉजिटिव होता है दो, अगर ये कभी कभी प्लांट्स में नेगेटिव होता है या प्लांट्स में जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है या टेंशन होता है वाटर कॉलम में जाइलम में, वो अहम रोल अदा करता है अपवर्ड ट्रांसपोर्ट में. तो इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे साई और छोटा पी लिखते हैं. जो वाटर पोटेंशियल होता है
उस पे असर पड़ता है सॉल्यूट पोटेंशियल का भी और प्रेशर पोटेंशियल का भी। जो रिलेशनशिप है वाटर पोटेंशियल होता है बराबर जो हम लिखते हैं वाटर पोटेंशियल ऐसे, वो बराबर होता है ए डब्ल्यू है, वो बराबर होता है सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल ये डेरिवेशन है इस वाटर पोटेंशियल की, इसलिए इसलिए आप याद रखेंगे प्लांट वाटर रिलेशंस में जो ये वाटर पोटेंशियल होता है ये अहम रोल अदा करता है। अब हमें पढ़ना है इसमें परमेबिलिटी। परमेबल क्या होता है? एक चीज़ को, एक बॉडी को हम परमेबल कह सकते हैं एक सबस्टेंस के लिए इफ अगर इससे पसेज होगी, इफ अलाउज द पसेज ऑफ सबस्टेंस थ्रू इट, इसको परमेबिलिटी कहते हैं। अगर एक बॉडी के बीच से कोई सबस्टेंस गुजरेगा तो इसको परमेबल कहते हैं, परमेबल टू इट। इसी प्रॉपर्टी को परमेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेल वॉल इज परमेबल बिकॉज इट अलाउज बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टू पास थ्रू इट। सेल वॉल से सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पास हो रहे हैं, इसलिए ये परमेबल है। दूसरा है इम्परमेबल। इम्परमेबल क्या होता है? जिससे कोई भी चीज़ विच डज नॉट अलाउ बोथ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट टू पास थ्रू इट, जिससे न सॉल्यूट और न सॉल्वेंट पास हो जाए, उसको इम्परमेबल कहते हैं। सेमी परमेबल सर्टन membranes which allow penetration of only solvent molecules। कुछ membranes होते हैं जहाँ से सिर्फ पेनिट्रेट करते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं पास करते हैं। ऐसे मेम्ब्रेन्स को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी परमेबल फिर से याद रखिए, कुछ मेम्ब्रेन्स जो पेनिट्रेशन ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास होते हैं लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं पास होते हैं, ऐसे मेम्ब्रेन्स को सेमी परमेबल कहते हैं। अब एक और टर्म, परमेबल भी आपने याद रखा, इम्परमेबल भी, सेमी परमेबल। अब डिफरेंशियली परमेबल क्या होता है या सिलेक्टिवली परमेबल क्या होता है? जो ये डिफरेंशियली परमेबल या सिलेक्टिवली परमेबल होता है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स जो होते हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उनमें क्या होता है? दे अलाउ टू पास सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बट ओनली अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट। These allow the passage of solute molecules but only up to a certain extent and are therefore selective in nature। इसलिए ये selective होते हैं। They are selective in nature। They are known as selectively or differentially permeable substances। उनको कहते हैं selectively permeable और differentially permeable substances। इसलिए डिफरेंशियली परमेबल या सिलेक्टिवली परमेबल क्या होता है? ये यूजुअली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होते हैं जहाँ से सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पास होते हैं कुछ लिमिट तक। दे आर सिलेक्टिव इन नेचर, दे आर सिलेक्टिव इन नेचर, दे आर नोन एज सिलेक्टिवली परमेबल और डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन्स। अब ये मेम्ब्रेन्स के बारे में आपने पढ़ा, परमेबल, इम्परमेबल, सेमी परमेबल और डिफरेंशियली परमेबल। परमेबल वो होता है जहाँ से पैसेज होती है सबस्टेंस की थ्रू इट, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं परमेबिलिटी। सेल वॉल इज परमेबल। इम्परमेबल होता है जहाँ से कोई पैसेज नहीं होगी, विच डज नॉट अलाउ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टू पास थ्रू इट। सेमी परमेबल में कुछ मेम्ब्रेन्स अलाउ करते हैं पेनिट्रेशन ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं होते हैं, उनको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहती हैं। अब डिफरेंशियली परमेबल वो मेम्ब्रेन होते हैं जो अलाउ करते हैं सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को पास होने से, लेकिन ओनली अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट, किसी हद तक, इसलिए उनको सिलेक्टिवली या डिफरेंशियली परमेबल कहते हैं। दीज आर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। One more, now we will directly study this osmosis.
मेम्ब्रेन्स हमने पढ़े। अब हम ऑस्मोसिस की तरफ जाएंगे, क्योंकि डिफ्यूजन आपने पढ़ा। ऑस्मोसिस क्या है? इट इज़ द ऑस्मोसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रोसेस। ये बहुत अहम प्रोसेस है जो मूवमेंट ऑफ वाटर, लिविंग सिस्टम्स और उनके एनवायरनमेंट में अंजाम देती है। ये ऑस्मोसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट physical process that brings movement of water in living systems as well as in their environments. अब ऑस्मोसिस के लिए डेफिनेशन, ऑस्मोसिस के लिए डेफिनेशन है when two solutions having different osmotic concentrations। जब दो solutions हम लेंगे उनकी osmotic concentrations अलग हैं और इनके बीच में एक semi permeable membrane होता है, the molecules of solvent or water move from region of their high diffusion pressure और फ्री एनर्जी। मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा हाई डिफ्यूजन प्रेशर या हाई फ्री एनर्जी टू द रीजन ऑफ दियर लो डिफ्यूजन प्रेशर और फ्री एनर्जी, उस रीजन की तरह जहां लो डिफ्यूजन प्रेशर होगा या लो फ्री एनर्जी होगी। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसी मूवमेंट को कहते हैं ऑस्मोसिस। इसलिए जब दो सॉल्यूशंस हम लेंगे, अलग अलग कंसंट्रेशन होंगी उनकी, उनके बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा, जो मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट या वाटर के होंगे वो उस रीजन से जहाँ हाई डिफ्यूजन प्रेशर होगा या हाई फ्री एनर्जी होंगी उस रीजन से लो डिफ्यूजन प्रेशर या लो फ्री एनर्जी की तरफ जाएंगे। इसी मूवमेंट को, दिस मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर मूवमेंट या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं फ्रॉम रीजन ऑफ प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन। फ्रॉम, अगर प्योर सॉल्वेंट वाटर होगा, दूसरी तरफ सोल्यूशन होगी, फ्रॉम वाटर टू सोल्यूशन ये होंगे फ्रॉम हाई फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स to low free energy of water molecules, from dilute solution to concentrated solution, from high chemical potential or water potential to low chemical potential or water potential, high diffusion pressure of water to low diffusion pressure of water, high diffusion pressure to low diffusion pressure। अब ये ऑस्मोसिस चूँकि आपको क्लियर हो गया, अब इसमें दो टर्म्स और हैं, एंड ऑस्मोसिस, एक्स ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस में क्या होता है? एंड ऑस्मोसिस जब वाटर मॉलिक्यूल्स इंटर होते हैं सेल सेप एज ए रिजल्ट ऑफ सिंपल प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, इट इज़ नोन एज एंड ऑस्मोसिस। फॉर एग्जांपल, हम एक सेल लेंगे, सेल एक उसमें चूँकि कंसनट्रेशन होगी ही प्योर वाटर से ज़्यादा, इसलिए प्योर वाटर की फ्री एनर्जी ज़्यादा है, उससे या उसका डिफ्यूजन हाई डीपी डिफ्यूजन प्रेशर है, वो प्योर वाटर से सेल सेप की तरह जो मूवमेंट होगी उसको एंड ऑस्मोसिस कहते हैं। अब एक्स ऑस्मोसिस क्या होता है? व्हेन देयर इज रिवर्स मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जब रिवर्स मूवमेंट होगी वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल सेप टू आउटसाइड, सेल सेप से आउटसाइड की तरफ मूवमेंट होगी, उसको एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं। वो एक्स ऑस्मोसिस कब होगी? अब ये सेल की कंसंट्रेशन जो होगी, जब अंदर वाली कंसंट्रेशन से बाहर वाली कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उस वक़्त एक्स ऑस्मोसिस होगी। अब हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। अच्छा, सॉल्यूशंस वो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह।